टू लर्न द ग्रुप 18 एलिमेंट्स, यानी कि हमारे हैलोजन्स के बाद नोबल गैसेस. Group 18 consists of that elements which have their own van der Waals radii. They consist of noble gases like helium, neon, argon, krypton, xenon, radon and organism. All these gases and are chemically unreactive, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, noble gases. Occurrence, all these gases except radon and organism occur in the atmosphere और dry air में इनकी approximately 1% by volume ये major constituent में present है. वो भी सबसे ज़्यादा कौन present है, argon. Helium and some neon are found in mineral of radioactive origin, pitchblende, monazonite, clavellite. The main commercial source of helium is natural gas. Xenon and radon are the rarest element of the group. Radon is obtained as a decay product, जो आपको दिख रहा है 226 से. Radon organism has been synthetically produced by the collision of californium and calcium ion. Why the group of elements are noble gases? क्योंकि unreactive होते हैं, किसी भी react नहीं करते हैं, completely filled shell होती है. Organism symbol OG. Atomic number 118, atomic mass 294, electronic configuration radon 5F14, 6D10, 7S2, 7P6. शेल पूरा भरा हुआ है. ओनली वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव बीन प्रोड्यूस. इसकी हाफ लाइफ होती है 0.7 मिली सेकेंड. ठीक है, आपको सारे ग्रुप के अटोमिक कॉन्फिगरेशंस दे रखे हैं. कंप्लीटली फिल्ड शेल है. ठीक है, आगे चलते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, दे हैव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, क्योंकि खुद ही नोबल गैस है, NH2 NP6 एक्सेप्ट हीलियम जिसमें क्या है एस शेल, क्योंकि उसकी एन क्या है ओनली 1, तो वन शेल दैट इज एस शेल. Most of the properties of noble gases, including their inert nature, are ascribed to their closest shell structure. Ionization enthalpy due to stable electronic configuration. These gases exhibit very high ionization enthalpy. बहुत ज़्यादा होता है. It decreases down the group with increase in the atomic size. Atomic radii ग्रुप के साथ ऊपर से चलोगे, when you migrate from top to bottom it will increases. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेंगे क्या, ये बिल्कुल नहीं लेंगे, इसलिए लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होती है इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की. पॉजिटिव है मतलब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी तब एक्सेप्ट करेंगे, बट एज यू नो ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं. जनरली दे आर मोनोटॉमिक फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस. They are sparingly soluble in water. They have very low melting point and boiling point because of the only type of interatomic interaction in this element is weak dispersion forces. ये भी आपको पता है. Helium has the lowest boiling point. ठीक है, it has unusual property of diffusing through the most used laboratory materials such as rubber, glass, plastics. ठीक है, लो बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि ऑलरेडी अलग है तो अलग ही घूमना पसंद करते हैं. केमिकल प्रॉपर्टी लीस्ट रिएक्टिव होते हैं क्योंकि पूरा का पूरा कंप्लीटली फिल्ड शेल है. आयनाइजेशन एंथैल्पी है और मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है. नोबल गैसेस की सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें पता नहीं चला था जब तक नील बार्टलेट साहब नहीं आते. नील बार्टलेट थे इन मार्च 1962. नील बार्टलेट देन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलम्बिया ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नोबल गैस. फर्स्ट उसने एक रेड कंपाउंड बनाया जिसका नाम था O2+ PtF6-. ही देन रियलाइज द फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड जीनोन आर अप्रॉक्सीमेटली सेम. तो उसने एफर्ट करके सेम जीनोन का कंपाउंड बनाया. तब हमें पता चला कि ऑल्दो दे आर केमिकली अनरिएक्टिव या they are chemically less reactive, but still they form the compounds by mixing PtF6 and xenon. After this discovery, a number of xenon compound made with most electronegative element fluorine and oxygen. The compound of krypton are fewer. Only the difluorides have been studied in detail. ठीक है, कोई भी ट्रू कंपाउंड्स आज तक हम इसका नोन नहीं करते, लेकिन जीनोन के कुछ फ्लोराइड कंपाउंड है वो हम देखेंगे. जीनोन फ्रॉम 3 बाइनरी फ्लोराइड्स, xenon di, xenon tetra and xenon hexafluoride by direct reaction under appropriate experimental condition. आपको दे भी रखा है xenon फ्लोरीन से कितने टेम्परेचर प्रेशर पर रिएक्ट करके xenon डाइफ्लोराइड बनाएगा. अगर 1:5 का रेशो तो ZeF4, 120 का है तो ZeF6. ZeF6 कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय इंट्रैक्शन ऑफ ZeF4 and O2 at 143 Kelvin. XeF2, XeF4 are crystalline solid, sublime readily at 298 Kelvin. They are the most fluorinating agent. They are readily hydrolyzed even by traces of water. ठीक है, बहुत जल्दी आपको पहले बहुत इंपॉर्टेंट थी हाइड्रोलाइसिस इक्वेशन, आपको बहुत ध्यान से वाली इक्वेशन पढ़नी है. XeF2 वाटर क्या बनेगा जीनोन HF4 O2. सेम कंडीशन आगे भी आएगी कि कैटाइन के साथ अब्जॉर्ब मतलब कैटाइन को अब्जॉर्ब करते हैं, कैटाइन के साथ अब्जॉर्ब रॉन्ग वर्ड, दे डोनेट द इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट करते हैं कैटाइन को. फ्लोराइड आयन की स्पीसीज बना रहे हैं, आपको दिख रहा है. जीनोन ऑक्सीजन कंपाउंड
ये वाटर से रिएक्ट करके HCF4, एक तो आपको ZeF2 की रिएक्शन पढ़नी थी हाइड्रोलाइसिस की, यहाँ पर होगा HCF4 की, और एक HCF6 की वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। कंप्लीट द रिएक्शन में आती है डायरेक्ट। HCF4 की भी दिख रही है आपको, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से क्या बनेगा XCOF4, और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हम इसकी कर रहे थे तो XCO3 + HF बन रहा था, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल से करेंगे तो क्या बनेगा, 3 से क्या बनेगा, पूरा पढ़ना है। शेप हमने VSEPR से देना सिखाया था, V = ½ V + N = ½ V + M + A - C, इस फॉर्मूले से आपको निकालना है। शेप आपको डायरेक्टली स्क्वायर प्लानर, डिस्टॉर्टेड, स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। XCO3 ये कम्प्लीटली कैसा एक्सप्लोजिव सॉलिड है एंड एज ए पिरामिडल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। XCO4 कलरलेस वॉयलेट लिक्विड एंड हैज़ स्क्वायर पिरामिडल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो आप VSEPR से निकाल ही सकते हैं, ठीक है। नो द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस विद ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एलिमेंट रिमेन द सेम वाज बेडिंग स्टेट, तो आपको पता है